Good morning everyone. I am Moni from BSc Chemistry Honors first year. Today we will study nucleophilic substitution reaction. In this video we will study general features of nucleophilic substitution reaction, nucleophiles, mechanism for nucleophilic substitution, substitution nucleophilic bimolecular, substitution nucleophilic unimolecular and their stereochemistry of SN2 reactions. So first we will study nucleophilic substitution reaction. A substitution reaction is a chemical reaction during which an atom or a functional group in a chemical compound is replaced by another atom or a functional group. Means nucleophilic substitution reaction में living group को हम nucleophile से replace करते हैं. In organic chemistry, nucleophilic substitution is a class of reaction in which living group is replaced by an electron-rich species. This electron-rich species is nucleophile. The whole molecular entry of which the electrophile and the living groups are part is usually called as the substrate. मतलब जो वो पूरा पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल जिसमें मतलब अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जैसे नीली न्यूक्लियोफाइल में वो उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. The most general forms of substitution reaction may be gives as the following. न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ R प्लस लिविंग ग्रुप जनरली हैलाइड्स होते हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो क्या बनता है प्रोडक्ट में RNU एंड लिविंग ग्रुप क्या होता है एक्सिट हो जाता है. द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड while the living group departs with an electron pair. The principal product in this case is RNU. General features of nucleophilic substitution reaction. The nucleophiles may be electrically neutral or negatively charged. मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो जनरली न्यूट्रल होती हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं. मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होते या बहुत कम होते हैं. एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कुछ होते हैं एक या दो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं. वेयर्स द सबस्ट्रेट इज टिपिकली न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज. और जो सबस्ट्रेट होता है मतलब जो अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप होता है या आर लिविंग ग्रुप वाला जो ग्रुप होता है वो क्या होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है. देयर कंपोनेंट्स आर नेसेसरी इन एनी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द एब्रीविएटिव्स इन जनरल फॉर्म्स. आर इन आर एक्स मतलब जो जनरली जो होती हैं वो आर एक्स होता है. एक्स एन एन एटम कॉल्ड अ लिविंग ग्रुप जिसमें जो आर होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, जो एक्स होता है ये लिविंग ग्रुप होता है और एन यू ये न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्रेजेंट करता है. जनरल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरल फीचर्स क्या है जो दो सभी में कॉमन होते हैं जो SN1 में भी होंगे जो SN2 में भी होंगे. एज दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस nucleophiles they are called nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution are a Lewis acid base reaction. The nucleophiles donates an electron pair the alkyl halides and it accepts it and in a CX bond it's a heterolytic cleavage. Nucleophilic substitution reaction can be broadly categorized as the taking place in a saturated aliphatic carbon or at an aromatic or other unsaturated carbon center. Nucleophilic substitution reaction occur when an electron-rich species, the nucleophile, react at an electrophilic saturated carbon atom attached to an electronegative group. The leaving groups that can be displaced as shown in general schemes in figure 1. Nucleophilic substitution reaction. A common example of nucleophilic substitution reaction is alkaline hydrolysis of alkyl halide. Example RBr to the corresponding alcohols ROH, where the attacking nucleophile is OH and the living group is Br. मतलब जो RBr की हम OH से रिएक्शन करते हैं तो ROH बनता है और Br निकल जाता है. Br लिविंग ग्रुप है और जो OH नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल है. Kinetic measurement on a reaction in which alkyl halides react with a variety of different nucleophiles. Nucleophiles have revealed two specially extreme types. One in each rate of reaction is depends rate of reaction
मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है रिएक्शन होने की, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। एंड अनदर इन विच द रेट इज़ इंडिपेंडेंट, और किस पर इंडिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग विच डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम and electron rich species to be attracted to the positive nuclear charge of an electron poor species, the electrophiles. A nucleophile is therefore a chemical species that donate an electron pair to form a chemical bond in a relation to the reaction. All molecules or ions with a free pair of electron or at least one pi bond can act as a nucleophile. The term nucleophilic describes the affinity of nucleophiles to nuclei. Possible mechanism for nucleophilic substitution. Overall, nucleophilic substitution can be represented as the following. Nucleophile Rx, this is a sigma bond in broken, जो इनके R और X के बीच में sigma bond है, ये break होगा और new bond form होगा. There are the two fundamental events in a nucleophilic substitution reaction: breaking of the sigma bond to the leaving group, formation of the new sigma bond to the nucleophile. Nucleophilic substitution at an sp3 hybridized carbon therefore involves two sigma bonds, the bond to the leaving group which is broken and the bond to the nucleophile which is formed. Two mechanisms for nucleophilic substitution. Two mechanism, SN2 or SN1. The SN2 mechanism substitution nucleophilic bimolecular, and in SN1 the mechanism substitution nucleophilic unimolecular. इनको हम आगे सॉल्व मतलब रिप्रेजेंट करके अच्छे से मैकेनिज्म को दिखाएंगे. The numbers 1 or 2 in the names SN1 and SN2 refers to the kinetic orders of the reaction. It may also indicate the molecularity of the reaction. For example, SN2 means the kinetics are second order. The number 2 does not refer to the numbers of the steps in a mechanism. SN2 reaction is a single step process, where SN1 reaction is a two-step process. मीन्स बोल रहा है कि जो SN1 रिएक्शन है वो टू स्टेप रिएक्शन होती है. उसमें क्या होता है, जो ऑर्डर होता है मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता. तो जो उसका ऑर्डर होता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है. दैट्स वाई इसकी जो मोलिकुलरिटी होती है 1 होती है SN1 की, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेस टेम्परेचर पे अकर होती है रिएक्शन, और इसमें कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है. जो अगर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई तो मीन्स क्या होगा, उसमें फिर क्या होता है, हाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है SN1 रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर में. और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में होता है वो सिर्फ वन स्टेप पर रिएक्शन होती है, मतलब जो भी रिएक्शन होगी वो सिर्फ एक ही स्टेप में होगी, प्रोडक्ट एक ही स्टेप में बन जाएगा. इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एज एन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. मीन्स जो बॉन्ड ब्रेकिंग है जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दोनों एक साथ होते हैं. इसमें पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को यूज़ करते हैं, और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पे वर्क करती है. इसके जो अभी हम न्यूक्लियोफाइल है लाइक KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये सभी इसके न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं विद अल्काइल हैलाइड्स या सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, देन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. और इसमें कार्बोकटाइन नहीं फॉर्म होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और कार्बोकटाइन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट पे पॉसिबल नहीं है SN2 रिएक्शन में. और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 रिएक्शन का, ये सेकंड ऑर्डर है. सेकंड ऑर्डर कैसे, मीन्स इसकी मोलिकुलरिटी भी 2 है. सेकंड ऑर्डर है क्योंकि ये वन स्टेप है, तो न्यूक्लियोफाइल है, ये डिपेंड करता है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स के कंसंट्रेशन पे और लिविंग ग्रुप की कंसंट्रेशन पे. The mechanism for nucleophilic substitution by molecular is one step mechanism. Stereochemistry of SN2 reaction.
His backside attacks the nucleophile approaches from the opposite side to the leaving group of the substrate A, forming B. In this example, the leaving group was drawn on the right, so the nucleophile attacks from the left. Because the nucleophile and the leaving group are in the opposite positive position relative to the other three groups on carbon, backside attack result in the inversion of the configuration around the stereogenic center. Mechanism of nucleophilic substitution unimolecular reaction. Here the CX bond is broken first and then CNU bond is formed. Then the mechanism has a two steps and a carbocation is formed. ये जो मैंने पहले बता दिया कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है. This first step is a rate determining, and the rate of such a unimolecular reaction depends for the concentration of Rx only. Means जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है. अभी हम देखेंगे SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म. इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जब Rx रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और RNU बन जाएगा और X नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब लीविंग ग्रुप निकल जाएगा. ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये नया बॉन्ड बनेगा जो प्रोडक्ट है. इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें ये टू स्टेप रिएक्शन है. तो स्टेप वन में क्या होता है, न्यूक्लियो जो लिविंग ग्रुप है ये एक्सट्रेट होगा रिएक्शन से और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होंगे. दिस इज कार्बोकैटायन. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा RNU. इसमें जो अल्काइल हैलाइड है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. मीन्स कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वही अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी होगी. तो जितना 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन स्टेबल होगी. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले, अगर हम ये लिए CH3CCl रिएक्ट विद H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है SN1. तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH रिएक्ट करेगा यहाँ से, तो ये इस टाइप से बनेगा COH. ये प्रोडक्ट बन जाएगा और रिलीज क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस का HCl सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिएक्शन के. कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें और ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है. टू स्टेप रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे क्योंकि ये टू स्टेप रिएक्शन है. इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अभी ये जो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो लिविंग ग्रुप, जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. मीन्स ये बॉन्ड, ये जो ये है हैलाइड, ये जितना वीक होगा उतना वीक नहीं, जितना जल्दी रिलीज होगा उतने ज़्यादा जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो इसकी भी स्टेबिलिटी होती है. इसकी भी एक रिएक्शन होती है जैसे कि आयोडीन सबसे पहले, आयोडीन सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन. ये फ्लोरीन हो जाएगा. फिर ये है अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन. अभी उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1. इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है. कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है तो ये क्या होता है, प्लेनर होता है. अभी कार्बोकैटायन प्लेनर है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन है, ये अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है. वो अबोव द प्लेन भी रिएक्ट करेगा, वो बिलो द प्लेन भी रिएक्ट कर सकता है. तो इसका मतलब इसमें रेसमाइजेशन की फॉर्मेशन होती है. रेसमाइजेशन मतलब क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिटेंशन
एंड इन्वर्जन, दोनों इसमें साथ में बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। और फिर ये कब होगा, तब हमारे पास क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसमें हमारी जो चारों वैलेंसी हैं कार्बन की वो डिफरेंट होती हैं। लाइक यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, यहाँ पे H, एक साइड PH है और एक साइड कोई भी हेलोजन है। अभी जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमारे पास 50% रिटेंशन होगा और 50% हमारे पास क्या होगा, इन्वर्जन होगा। मीन्स रस्टमाइजेशन फॉर्मेशन होगी, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पे रिटेंशन होगा, इस साइड OH लगेगा और एक इस साइड लगेगा, ये पलट जाएगी। ये है SN1 रिएक्शन। अभी देखेंगे SN2। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। इसका जो DM है, मीन्स डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, RX जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा उसमें क्या होगा, RNU बनेगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो सिर्फ सिंगल स्टेप होती है, स्टेप 1 ओनली, एक वन स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो RX है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड से, और यहाँ से क्या होगा, RX और RNU बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होंगी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, आगे क्या हो जाएगा, फिर RNU बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, इसमें बैक साइड से इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ इन्वर्जन होगा। सिर्फ इन्वर्जन कैसे होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। इसमें ना कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती, मीन्स कार्बोकैटायन होता तो प्लेन और मॉलिक्यूलर होता तो दोनों साइड से अटैक होता, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, इसलिए ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो सिर्फ इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मीन्स क्या, जो अपोजिट बनते हैं। और ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जितना ज्यादा अल्काइल हैलाइड है ना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। इसके बाद जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स कम होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसमें 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये भी एक्सोथर्मिक होता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। फॉर्मेशन, ये थी SN1 और SN2 रिएक्शंस। थैंक यू।